Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. Alright, so there is a special announcement today, uh, and this is that we are giving access for 1 month to our prelims mentorship program for only rupees 500. Okay, so इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले I'll just tell you about your mentors. Okay, because this is very important कि आपको ये पता हो कि if you are choosing us and if you are choosing any platform for their guidance, तो आपको एटलीस्ट उनका क्वालिफिकेशन और उनकी एबिलिटीज के बारे में पता हो, राइट? ओके, सो सबसे पहले वी हैव IFS मोहित बंसल, okay, from 2023 batch. So he is currently serving in Jharkhand and he has got experience of 3 mains and 2 interviews. ठीक है, इसके बाद we have जितेंद्र sir. He has got experience of 2 CSC mains and 1 forest mains. Then this is me, Sonia Patel. Okay, I have experience of 2024 mains and I have improved my score, prelim score from 66 and 67, that which was consistent for like 2 to 3 attempts. Then it improved to 87. So basically, I cleared GS cutoff by, in fact, a very good margin of 12 marks. This is 12 marks more than the general cutoff of 2023, if you know the general cutoff, right? And इसके बाद I am getting around 99 to 100 in 2024. ठीक है, so whatever has helped all three of us, okay, in gaining all of this experience and qualifying this preliminary stage, ठीक है, ये सारी चीज़ें we want to provide you all through this platform, and ये सारी चीज़ें exactly the way they have helped us. ठीक है, like for example, if one book has helped us for one subject, so we will be providing you that one book only, and in this manner we want to help you and we want to save you from that plethora of materials that you get in any coaching program, be it affordable programs, that is the new programs that you join, and because we have also joined those programs, so we know कि वो programs, though they are coming from very experienced people and veterans, in fact some of qualified candidates, however they provide you with what is needed plus what is not needed. ठीक है, तो उससे आपकी टाइम और एनर्जी काफ़ी वेस्ट होता है, एंड ये जब आप उसको ज्वाइन करते हो ना तब आपको समझ नहीं आता, जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो ना तब आपको समझ में आता है कि यार इतना ज़्यादा देने की नीड क्या थी, दैट टू व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड, लाइक इफ़ यू आर जॉइनिंग समबडी, है ना, सो यू आर जॉइनिंग दैट पर्सन बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, सो यू आर जॉइनिंग विद एक्सपेक्टेशन कि ये इंसान मुझे वो सारी चीज़ें देगा, सब कुछ छाँट के और सब कुछ कंसाइज़ करके, ताकि मेरी मेहनत बचे, टाइम बचे, है ना? और मेन पूरा फ़ोकस राइट प्रिपरेशन में लगा सकूँ। लेकिन ये द पीपल फेल टू डू दिस, ओके? सो ये जो गैप है, सिंस वी हैव सफर्ड because of these things, these lackings of these platforms, we are here to fill that gap. Okay, now best part of all three of us is that all of us have either scored or qualified forest cutoffs in prelims, not just the CSC cutoff, and all of you must be knowing कि forest cutoff clear करना is a task in prelims, right? Because it's only 1000 to 1500 students who make it, ठीक है, other like unlike more than 10,000 just for CSC, ठीक है. So this was about our team, our core team basically. Okay, now moving on to the 500 monthly access. So see, why are we giving this 500 rupees monthly access? So इसके दो मोटिव्स हैं. पहला ये कि 500 हमने क्यों रखा, फ्री क्यों नहीं रखा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कईयों के दिमाग में. सो दैट इज हैपनिंग बिकॉज व्हेन वी गेट समथिंग फॉर फ्री, हम उसे उतना सीरियसली नहीं लेते हैं. ओके, सो दिस 500 इज टू इंश्योर कि आप अगर हमें ज्वाइन कर रहे हो तो आप सीरियसली हमें ज्वाइन करो, ठीक है, और आप अपना बेस्ट दो, एंड ऑफ कोर्स वी विल गिव यू आवर बेस्ट, ठीक है. In this manner you will get to know how is our program different from others. Okay, how is our mentorship really making a difference in students preparation, whoever is joining us. Okay, and uska bhi proof I'll show you abhi, theek hai. Okay, so this was about the reason that why, and what will you get in this monthly access. So you will get every feature of our mentorship program जो भी है, and जो भी इसके features हैं वो I have already detailed in first video of my channel,
ठीक है, ऑफ आवर चैनल। तो आप वो वीडियो जाके देखो, उसका लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड उसका पीडीएफ यू कैन गेट इन आवर टेलीग्राम चैनल, प्रीलिम्स कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम करके। यू विल गेट अ पीडीएफ हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक आई शेयर डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन जॉइन दैट ग्रुप एंड यू कैन सी द पीडीएफ, उसमें सारी डिटेल्स हैं उसमें, ठीक है। Okay, so you will get all of that. Basically, you will get that personalized guidance of mentor student group that we form. Okay, इसका example I'll show you. देखो, see, these are our students. ये हमारे कुछ students का feedback है, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रुप है, उसमें वो स्टूडेंट है जिसने हमें ज्वाइन किया है, और उसके अलावा मेंटोर्स आर देयर, दैट्स ऑल, देयर इज नो अदर स्टूडेंट इन द ग्रुप। ओके, एंड यू कैन सी द फीडबैक्स, ठीक है, like this that the student is saying on his own। okay, in a similar manner you can also read this feedback, ठीक है। So this is what we do, basically we give proper personalized guidance and that particular space to that student कि वो जो भी query है उसको, इसमें अगर आप बाकी चीज़ें देखोगे तो you can see that they are posting targets and we are updating them with content whatever we are uploading and everything, ठीक है। चलो, नाउ इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस प्रोग्राम 500 एक्सेस का, दैट इट इज 100% रिस्क फ्री। हाउ इज दिस? सी, इफ यू आर joining us for this month, है ना, for 1 month, and if you are doing everything with dedication, ठीक है, जैसे जैसे we are guiding you for the exam, still if you don't find value after a month, we will refund this 500 to you and we will not ask you any question। okay, we won't question that at all। सो दिस इज बेसिकली पूरी तरह से रिस्क फ्री। नाउ इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। वी एक्चुअली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे प्रोग्राम के एक्सपीरियंस गेन करें एंड इस चीज़ को देखें कि हाउ आर वी प्रोवाइडिंग समथिंग विच इज़ रियली नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, ऑल राइट। सो इसको कैसे ज्वाइन करना है, आई टेल यू व्हेन आई टॉक अबाउट द कोर्सेज इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। और एक ब्रीफ बता देती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओ upsconmars.com, इसका भी लिंक आई शेयर डिस्क्रिप्शन में, एंड वहाँ पे आप प्रीलिम्स कस्टमाइज मेंटोरशिप कोर्स में जाओगे, सो देयर यू विल गेट 500 वाला प्राइसिंग प्लान, तो यू चूज दैट एंड यू गेट एक्सेस टू दिस, ठीक है। और कोई भी और क्वेरी हो तो यू कैन डेफिनेटली टेलीग्राम अस, कमेंट अस, या फिर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, यू कैन इवन व्हाट्सएप अस। ओके, ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, एंड बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स अस इन नोइंग कि वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए, ओके, सो दिस इज डे 16 of our PYQ series and we are continuing with polity. So we will be continuing with amendment today and we will also do questions from basic structure of the constitution wala chapter, ठीक है। For those who are new to this series, we are doing polity chapter wise, polity PYQs chapter wise, okay, so that आपको बहुत बढ़िया से पता हो कि किस chapter की कितनी importance है prelims के लिए। okay, now this again you will not find really anywhere else, okay, I haven't seen at least कि chapter wise कोई करवा रहा है, but all right, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। सो अमेंडमेंट का जो भी इंट्रोडक्शन है या थोड़ा सा ब्रीफिंग है वो हम कल के वीडियो में देख चुके हैं। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट लेक्चर या फिर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स, गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, आई शेयर द लिंक ऑफ प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स बिकॉज उसमें PYQ के अलावा और काफ़ी सारी इंसाइट्स हैं एग्जाम को लेके, ठीक है। आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा। ऑल राइट, चलिए। So, consider the following statements. An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. Okay. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India. Okay. ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें पे एम्फेसाइज़ मैंने कल के वीडियो में किया था कि इनिशिएट कैसे होता है और अगर फेडरल कैरेक्टर है तो कितने स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए। इन दोनों इन्फॉर्मेशन पे आई हैव एम्फेसाइज्ड अर्लियर ऑलरेडी कल के लेक्चर में। आप वो लेक्चर ज़रूर देखो, अगर नहीं देखा है तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए याद रखनी चाहिए। ओके, चलो, तो इसके बारे में आज भी हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ओके,
लेट्स सी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट वंस अगेन। देखो पूरा आई वोंट गो अगेन क्योंकि ये कल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और कल के पीडीएफ में भी आपको ये सब मिल जाएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप जाओ वहाँ पे, आप यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, सो लेट्स रीड। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ही बोल रहा है, इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आइदर हाउस मतलब ईदर लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे कोई एक हाउस मेंशन्ड है क्या? नहीं, ठीक है। ऑल्सो नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट्स नहीं इनिशिएट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो ये हमारा जो ये ओनली लिख दिया है इसने, ये गलत हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ अब यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये पॉलिटी है तो कहीं भी अगर ओनली मेंशन्ड है तो ओनली देख के काट नहीं देना है स्टेटमेंट को, ठीक है। फॉल फॉर योर नॉलेज, नॉट दीज वर्ड्स इन केस ऑफ पॉलिटी। ऑलराइट, ये ध्यान रखना, पॉलिटी में इतना ज़्यादा ये सब वर्क नहीं करता है, तो पॉलिटी में एटलीस्ट प्लीज़ स्टिक टू योर नॉलेज एंड फैक्ट्स, ठीक है। अब बिल्कुल ही अगर आइडिया नहीं है तो ठीक है, आप इन चीज़ों पे ऑफकोर्स इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ट्रायल देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप उसी चीज़ पे जाओ। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। देन वी हैव सेकंड वन, सो विच सेज फेडरल कैरेक्टर वाला है ना, ये भी देखते हैं। देखो, if the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must also be ratified by the legislatures of half of the states. See, directly coming from Lakshmikant, ये सब कुछ बुक से ही लिया हुआ है मैंने, and I take screen shots from the book itself because I want to let you all know कि सीधा static से question आता है majorly. I have not left any PYQ, okay? अभी तक जितने भी chapters हमने किए हैं मैंने कोई PYQ मिस आउट नहीं किया है, लेकिन आप उसमें नोटिस करना, मतलब ये बताने का पर्पस ये है यहाँ पे कि आप उसमें नोटिस करोगे, अगर अभी तक नहीं किया था, कि सारे क्वेश्चंस ना बुक से ही हैं। आई हैव गिवन एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के बाद, हर लेक्चर में, तो यू वुड सी कि वहाँ पे हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट बुक से आ रहा है। करंट अफेयर्स से देयर इज हार्डली एनी क्वेश्चन अभी तक, अड्डी जितने भी चैप्टर्स किए हमने। कल ही हमने 2 क्वेश्चन देखे थे अमेंडमेंट वाले बस, कि अगर कोई अमेंडमेंट है करंट अफेयर्स में, करंट न्यूज़ में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स आपको पता होनी चाहिए कि कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो वो उसका प्रोविजन क्या ऐड हो रहा है उससे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है ऑल द स्टेट्स, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि हाफ चाहिए होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने पूछा है करेक्ट क्या है, सो दिस विल बी नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी आप या तो कल का लेक्चर देख लो या आप खुद से पढ़ लो, ठीक है। चलो, question number 2, as per article 368 of the constitution, the parliament may amend any provision of the constitution by way of addition, variation, repeal। ये बेसिकली बोल रहा है कि पार्लियामेंट क्या क्या चेंजेस कर सकता है, ठीक है। क्या वो ऐड कर सकता है, क्या वो वेरी कर सकता है कुछ चीज़ें, क्या वो रिपील कर सकता है कोई प्रोविजन। चलो देख लेते हैं, ये भी चैप्टर में ही से ही आया है। सी, पार्लियामेंट मेन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील, ठीक है, सीधा सीधा बुक से। सो वी हैव द आंसर एज 1, 2 एंड 3। और चलो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल या फिर मतलब लॉजिक से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लॉजिकल भी है क्योंकि ये अच्छा, दोज हु आर नॉट न्यू दे तो नो कि वी डू ऑल ऑफ दिस इन एवरी लेक्चर, बट इफ एनीबडी इज न्यू तो वी ट्राई टू सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन लॉजिक से भी, बिकॉज अगर आपको नहीं पता है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट या फिर फैक्ट, तो हम चाहते हैं कि आप लॉजिक से भी वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो इस क्वेश्चन में देखो आप क्या लॉजिक लगा सकते हो। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम लेजिस्लेशन मेकिंग बॉडी इन इंडिया, है ना। तो आपको क्या लगता है इस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट कोई भी चेंज में ऐड, वेरिएशन या रिपील ये चीज़ें नहीं कर सकती? आप लोग इतना ज़्यादा सुनते हो, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है यूपीएससी के लिए एक बार भी पढ़ी है तो आपको पता होगा, कई बार चैप्टर्स में ही कितनी बार मेंशन होता है कि ये ऐड हुआ इस अमेंडमेंट से, ये वेरिएशन, ये चेंज किया पार्लियामेंट ने उस साल, फिर ये प्रोविजन ऑफ रिपील्ड है। लाइक आर्टिकल 31 ही देख लो, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, रिपील्ड है ना वो। तो आ रहा है ना इससे समझ में कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पार्लियामेंट कुछ भी कर पा रहा है, राइट। तो इससे भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नाउ दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, ये चीज़ पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से कि कहाँ पे मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये एक यूपीएससी का ट्रेंड है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड है
तो उसको आपको बहुत एक तो बहुत अच्छे से देखना है, पे अटेंशन, ठीक है। इट इज़ मोस्टली इनकरेक्ट, मोस्टली वो कुछ ऐसा ही देगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड है तो कुछ ऐसे ही देगा जो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड से दे रहा है, डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ऊपर से ये डिफाइन वाला वर्ड भी, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये डिफाइंड है वो डिफाइंड है, बहुत कम ऐसा होता है, रेयरली, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ट्रेंड है जो याद रखना। तो डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ दिस, नो इट डज नॉट डिफाइन, क्योंकि लेट्स रीड, नाउ दिस इज फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर। सो कैसे आया बेसिक स्ट्रक्चर? इन द केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है ये चीज़, ओके। चलो, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहले सॉल्व कर लो फिर देखते हैं। सो क्या ये डिफाइन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही लेके आया है और सुप्रीम कोर्ट ही बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। नाउ फिर से बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ, और ये कोर्ट्स मतलब पता है क्या होता है? कोर्ट्स में जब भी कोई चीज़ मेंशन्ड है, मतलब कि ये वर्ड टू वर्ड मेंशन्ड है उस जगह पे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे एग्जैक्टली ये वर्ड्स मेंशन्ड है। लेट्स रीड अबाउट दिस, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। बेसिकली इसका मेन पार्ट तो अभी यही है, तो इसको देखते हैं, ठीक है, क्या ये प्रोवाइड करता है। सी, द फेज जुडिशियल रिव्यू हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर। However, several articles explicitly confer this power to Supreme Court and High Courts. Now, these articles are Article 13, ठीक है, जैसे ये बोलता है कि all laws that are inconsistent with fundamental rights shall be null and void. ओके, क्लियर? तो ये आर्टिकल ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दे रहा है जुडिशियल रिव्यू की, कि आप हर लॉ को रिव्यू करो कि वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। क्लियर? देन सेम गोज विद आर्टिकल 32, ओके। तो देर इज नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज सच, एक ये इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। सो आंसर वुड बी, ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नन ऑफ देम इज करेक्ट, सो नाइदर वन नॉर टू। चलो, सो अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज नाउ। This is the program when I was talking about the 500 access. So this is the program for which we are giving 1 month access for rupees 500 only. ठीक है? Why do we want you to try this? Because this will give you the best features that you will not get in any other program currently. And I'm not just saying this, you can compare it. Okay. Also, because we only have 200 seats in this program. Now, why this? Because we want to maintain this quality of customized mentorship. ठीक है? चलो, so you get a dedicated mentor in this program. Dedicated mentor means you will have a group with only your mentor. There can be one or more than one mentors, but there would not be any other student apart from you if you join our program. Okay, so in that group you are there with your mentor. You can call or you can text your mentor at any time you wish to for any query. Okay, apart from this, you get a planner according to your level of preparation. Like 1 year, if you're preparing for from 1 year, so accordingly you will get. If you have just started, you will get accordingly, and so on. Okay. Then everything else that you need for qualifying your prelims, current affairs, okay, PYQs, and everything. Chalo. So इसके बाद we have this program of ours without mentorship. Now this is without mentorship because firstly, if you don't need a mentor in that case. Secondly, if we are done with 200 candidates, we won't admit any more here. Okay, since we have promised this to our students. So the rest can join this. इसके अलावा we have current affairs and PYQ program. So if you have any trouble with these two, you get this program and you'll be sorted with this. You are already seeing the quality of our PYQ analysis and solutions through our series. ठीक है? Current affairs quality also you can check by November and December current affairs PDF, which is uploaded, which you can download from our Telegram channel, या फिर हमारी वेबसाइट पे आप जाइए, आपको वहाँ पे भी ये PDFs मिल जाएंगी. ठीक है? And we have covered these
current affairs, monthly current affairs in only 30 to 40 pages. Now you might be thinking कि इतने कम में तो कुछ ना कुछ miss out हुआ होगा. No, that is not the case, and you can check on your own. See what happens. यूपीएससी में एक ये मिथ बना दिया है कि बहुत ज़्यादा मोर इज़ ओनली राइट. ठीक है, ये मिथ है. लेकिन what is correct, that you need to refer to less and to the point thing. लेस का मतलब ये नहीं कि आपको important चीज़ें मिस आउट करनी है. नो, लेस मीन्स राइट थिंग्स ओनली एंड what is actually required. ऑल राइट. ओके. सो जब आप सिर्फ प्रिलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स करते हो ना, तब वो बहुत ही कंसाइज्ड बनता है. एंड ये हमें काफ़ी अटेम्प्ट देने के बाद रियलाइज़ हुआ है. एंड दिस रियलाइजेशन वी आर यूजिंग इट फॉर हेल्पिंग यू ऑल. ठीक है, चलो. So, and if none of this program, you can definitely go for this current affairs program, because in every attempt of prelims, this becomes a headache. Coverage of current affairs, okay? And 1 year is not sufficient. To be very honest, you can analyze prelims paper on your own, and you will notice that actually में you need to know 2 to 3 years current affairs. So, अब आप खुद से करोगे तो फिर तो टास्क हो जाएगा आपको कंप्लीट करना. So we are here to provide you with proper concise 2.5 years current affairs, which is going to feel like 1 year. Okay, you must have gotten an idea by listening ki ye sirf 30 to 40 pages hai a month. Okay, please do not run behind PT. Please do not run behind this, because yes, it was important ek time pe, now it is not. ठीक है, the cost benefit ratio is really less for PT 365, and it consumes a lot of time. Okay, I have, and my team members have also made this mistake in their initial attempts, of course, but we have learned this with time, so we are telling you, trust us and do not fall for that. Okay, everybody is providing you with the PT 365 lecture in the market because उन सबको पता है कि आपके हिसाब से वो सही है. ठीक है, तो क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट करना चाहता है, बिकॉज उनका कंसर्न बस एक ही है, सो दे प्रोवाइड यू विद दोज लेक्चर्स. बट वी आर नॉट हियर फॉर दैट. वी आर हियर टू गाइड यू विथ राइट थिंग. ठीक है, चलो. सो this is our website. I'll share the link in the description. You can visit this and you can enroll in any of these courses as and whatever suits you the best. ठीक है, for that 500 wala thing, I'll just take you to our website and I'll tell you how can you get that course. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. ठीक है, click on this and this course will open. Then see यहाँ पे scroll down and you will get here one time. See this 500 plan, and you if you can see, it is valid till February 27. ठीक है, so you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है, chalo. Let's get back to the lecture now. Okay, moving on to next question. Question number 4. One of the implications of equality in society is the absence of, okay, privileges, restraints, competition, ideology. अच्छा, before starting this, ये कुछ questions हैं. 2 questions actually. I'll just write here. 2 questions of preamble were missed. ठीक है, so we'll do them today. So we'll do here. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली हाँ, इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी क्या है इसमें से, एब्सेंस ऑफ व्हाट. दिस इज कमिंग फ्रॉम प्रीएम्बल चैप्टर. सी, इक्वालिटी के अंदर यू विल फाइंड पहली ही लाइन में द टर्म इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस. क्लियरली डायरेक्ट मेंशन है और डायरेक्ट आंसर है, इसमें कोई
लॉजिक या कुछ और नहीं लगाना है इसमें, आपको सीधा वर्ड टू वर्ड और इसको रट लेना है, ठीक है। रट लेना इसको, प्लीज़ रट लेना, बिकॉज ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो इसको रट लो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में रट लेना पॉलिटी में, बिकॉज यूपीएससी के हिसाब से अगर कोई एक आंसर सही है, जैसे वो बोल रहा है कि इक्वलिटी यही होता है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं बोल रहा है, कॉम्पिटिशन कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसको रट लेना है प्रिविलेजेस को, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? So most appropriate definition of liberty. Now again liberty के बारे में कहाँ पे डिस्कस है, preamble चैप्टर में, ठीक है। लेट्स रीड पहले liberty में क्या मेंशन है, फिर हम आते हैं ऑप्शंस में। Liberty, the term liberty means absence of restraints on the activities of individuals. तो देखो absence of privileges क्या था, I'll highlight this. absence of privileges क्या था, equality. absence of restraints क्या है, liberty. Clear? चलो, on the activities of individuals and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. All right. तो यहाँ पे ध्यान दो कि ठीक है, लिबर्टी का मतलब होता है कि रिस्ट्रेंट नहीं होना, बट इसका अल्टीमेट मोटिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, ठीक है। क्लियर? तो अल्टीमेट हमारा आंसर इस हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, नो। मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, और इसलिए मैंने वहाँ पे एम्फेसाइज किया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, ये तो ठीक है मीनिंग है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिरेनी ये तो चलो होता ही है, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, ओके। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ये होता है, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं ये देखते हैं, अभी तक इसको सही मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं है। अब अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, ये तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव लिबर्टी की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Opportunity to develop oneself fully. Yes, this is the ultimate goal and this is the most appropriate implication. Clear? I hope I was clear. ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया हो, डाउट हो, comment me, I'll explain in the next video. All right? Okay, I hope you liked the lecture, it was helpful and you got some clarity about various concepts. Thank you for your presence and have a lovely day.